So now second algebraic method to solve a pair of linear equation is known as elimination method. This is also known as elimination by equating the coefficients. In this method, we need to make the coefficients of one variable equivalent in both the equations. For example, we have x plus 2y is equals to 7. In second equation, we have 3x plus 7y equals to 20. Okay, so now to solve this pair of linear equation, we need to make the coefficients of one variable, for example x, equivalent in both the equation. In first equation the coefficient of x is 1, in second equation the coefficient of x is 3. So we need to make them equal. If we want to eliminate x, then we'll multiply the first equation by 3. Okay, so now when we multiply the first equation by 3, it will become 3x plus 6y equals to 21. Okay, now second equation is 3x plus 7y equals to 20. Okay, so now we can observe that coefficient of x in both the equation is equal, so we can subtract both the equation. Now 3x is cancelled out and 6y minus 7y is minus y is equals to 21 minus 20 is equals to 1. So if minus y is equals to 1, then y equals to minus 1. After getting the value of one of the variable, now we can substitute it in second or first equation. Like the first equation is x plus 2y is equals to 7. If we substitute y is equals to 1 in this equation, it will become x minus 2 is equals to 7, and therefore x is equals to 7 plus 2. So x is 9. Okay, so we have x equals to 9 and y equals to minus 1. In this way we can solve a pair of linear equation using elimination method. In elimination method, sometimes we need to multiply both the equations by a different number. Sometimes we need to multiply only one equation. Like if we have a pair like 2x plus 3y is equals to 10 and 3x plus 2y is equals to 20, then we need to multiply both the equation to make their coefficient same. So now in this pair the coefficient of x is 2, in second equation coefficient of x is 3. So to make their coefficient same, we will multiply the first equation by 3 and multiply the second equation by 2. So when we multiply the first equation by 3, it will become 6x plus 9y equals to 30, and second equation will become 6x plus 4y equals to 40. Now when we subtract these two equations, we get 5y equals to minus 10. So y equals to minus 10 upon 5. So result is y equals to minus 2. Now we substitute this value in first or second equation. So we have 2x plus 3y equals to 10. If we substitute y equals to minus 2, it will become 2x plus 3 into minus 2 equals to 10. So 2x minus 6 equals to 10. Therefore 2x is equals to 10 plus 6. 2x equals to 16. So x is equals to 16 divided by 2, that is 8. So we have x equals to 8 and y equals to minus 2. In this way we can solve a pair of linear equation. So sometimes we need to multiply both the equations, sometimes we need to multiply only one equation. Okay, now if sign of both the equations are same, then we need to subtract like this. We need to subtract both the equation. Here also the sign of both the equations were same, therefore we have subtract the second equation from first equation. We have subtracted. Okay, but sometime if coefficients are opposite, coefficients have opposite sign, if coefficients have opposite sign, then we can add the equation. For example, in this pair of linear equation, we can observe that sign of y, coefficient of y is opposite in both the equation and coefficients are already same. So we don't need to multiply this pair of equations by any number because coefficients are already same of y. So we can directly add this equation
We don't need to change the sign because we are adding. And why we are adding? Because signs are already opposite. Okay, so when we add this pair, x plus 2x, that is 3x equals to 17. So x is equals to 17 upon 3. Now we can substitute this value in one or second equation. In this way we can solve a pair of linear equation by elimination method. This is also known as elimination by equating the coefficients. So in exercise 3.4, we need to solve the following pair of linear equation by elimination method and substitution method. Okay, so we'll solve only by elimination method because we already know the substitution method. So in first part, we have x plus y equals to 5 and 2x minus 3y equals to 4. So now we can observe that in first equation the coefficient of x is 1 and in second equation coefficient of x is 2. So we have two different coefficients. Now to make them equal, we need to multiply the first equation by 2. Then this equation will become 2x plus 2y equals to 10. When we multiply this equation by 2, then we get 2x plus 2y equals to 10. We need to multiply 2 with each term. Okay, so we get this equation, and we don't need to multiply the second equation because already the coefficient of x is 2 in both the equations. So now we can observe the sign of x in both the equations, that is positive. So we need to change the sign, and for that we will subtract the equations. So when we subtract the second equation from 1, we get 5y equals to 6. Now y equals to 6 upon 5. Okay, now we'll substitute this value in first or second equation. For example, if we substitute this value in first equation, we get x plus y equals to 5, but y is equals to 6 upon 5. So we can substitute this value here. So x plus 6 upon 5 is equals to 5. So x is equals to 5 minus 6 upon 5. Okay, now we'll take LCM. 5 multiplied by 5 is 25 minus 6. So x is 19 upon 5. So solution of this pair is 19 upon 5 comma 6 upon 5. ओके, तो इस मेथड में हमें यही करना है कि हमें दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को सेम करना है. सेम करने के लिए कभी ऐसा होगा कि हमें एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कभी दोनों को. ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा x का कोफिशिएंट 2 है और दूसरी इक्वेशन जो है फर्स्ट इक्वेशन उसमें x का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 को 2 बनाया जा सकता है. इसके लिए 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन से, तो इसलिए हमें मिली इक्वेशन 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10. उसके बाद हमने देखा 2x के साइन दोनों में ही पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव साइन जब भी होगा दोनों में या दोनों में जब नेगेटिव होगा तो विल सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस, एंड व्हेन वी सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस वी हैव टू चेंज द साइन. तो हमने यहाँ पे साइन चेंज की और हमें मिला 5y इक्वल्स टू 6, so y इक्वल्स टू 6 अपॉन 5. अब इस y की वैल्यू को हमने फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया है और इससे हमें x की वैल्यू मिल गई है. तो बच्चों इस मेथड को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, अभी हम इसी मेथड से एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा. यहाँ देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 और सेकेंड है 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2. अब देखो मेथड ये है कि कोफिशिएंट सेम करो. तो अगर हम x के कोफिशिएंट सेम करना चाहें तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है, सेकंड में 2 है, तो 3 को 2 को 3 नहीं बनाया जा सकता. इसका मतलब इस पेयर में दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, तो 3 को भी 6 बनाया जा सकता है और 2 को भी 6 बनाया जा सकता है. इसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड इक्वेशन को 3 से. जब हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी 6x प्लस 8y इक्वल्स टू 20. ओके, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 10 जा 20. When you multiply the second equation by 3, it will become 3 2 जा 6x, 3 2 जा 6y, 3 2 जा 6. अब हम देखते हैं कि 6x जो है वो दोनों के साइन पॉजिटिव है, तो इस कंडीशन में हमें इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे और उसके लिए हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे. ओके, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2. तो जब हम इनको माइनस कर रहे हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे.
अब 6x हो गया कैंसिल, और 8y प्लस 6y हो गया बच्चों 14y, और 20 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो इधर भी आ गया 14। तो 14y अगर 14 के इक्वल है तो बच्चों y होगा 14/14, दैट इज़ 1। अब इस y की वैल्यू को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में रख दें या सेकंड में रख दें तो देखो क्या होता है। तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। अब y की वैल्यू को बच्चों इसमें रख देते हैं हम। तो 3x प्लस 4 इंटू 1 हो गया 10। सो 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10। अब इस 4 को उधर ले चलते हैं तो इसका साइन हो जाएगा चेंज। तो 3x इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 6। तो अगर 3x 6 के इक्वल है तो बच्चों x होगा 6/3 यानी 2। तो इस तरह से हमें 2 और 1 ये मिल गया पेयर। तो यही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1। तो बहुत ही इजी मेथड है। सबसे पहले दोनों इक्वेशन में किसी भी एक कोफिशिएंट्स को सेम कर दो, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम कर दो। उसके लिए देखो किसको मल्टीप्लाई करना है, एक इक्वेशन को करना है या दोनों से करना है। जब मल्टीप्लाई हो जाए और कोफिशिएंट सेम हो जाए तो उसके बाद ये देखो कि क्या दोनों के साइन सेम है। अगर दोनों के साइन सेम है तो फिर हमें उसको कैंसिल आउट करने के लिए दोनों इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा। जिस इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस इक्वेशन के सभी टर्म्स के साइन को चेंज किया जाएगा। उसके बाद हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी जिसको हम फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ सेकंड वेरिएबल। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। ओके, नाउ थर्ड पार्ट। Here we have 3x minus 5y equals to 4 and 9x minus 2y equals to 7. Okay, we have these two equation. यहाँ पे 3x माइनस 5y था, -4 को हम उधर ले गए, यहाँ पे 9x था, 2y को उधर लिया, साइन चेंज हो गया, उधर 7 रह गया। ओके, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख दिया। बच्चों अब ऑब्जर्व करो कि x का फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट है 3 और x का सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट है 9। तो हमें पता है हम 3 को 9 बना सकते हैं और इससे दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट हो जाएंगे सेम। तो 3 को 9 बनाने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ वी डोंट नीड टू मल्टीप्लाई द सेकंड इक्वेशन। ओके, नाउ व्हेन वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन बाय 3 इट विल बिकम 3 3 जा 9x माइनस 3 5 जा 15y इज इक्वल्स टू 12 एंड सेकंड इक्वेशन इज 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। बच्चों अब हम इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि दोनों में 9x पॉजिटिव है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर देंगे। ये 9x हो गया कैंसिल। नाउ -15 + 2 इज -13y एंड 12 - 7 इज 5। ओके, सो y इज इक्वल्स टू 5/-13। In this way we can find the value of one variable. Now we need to substitute this value of y in first or second equation. If we substitute this value in first equation, we get 3x minus 5y is equals to 4. Now if we substitute y is equals to 5/-13, we get 3x equals to 4 minus 25/13. So now LCM, so 13 4 is 52. So now ये 3 इधर आके डिवाइड कर देगा तो बच्चों आंसर आया 9/13। बात समझ में आई? बहुत ईजी है। जब वैल्यू पुट कर दो तो जो जिसकी वैल्यू पुट की उसको उधर ले जाओ दूसरी साइड। 25/13 को उधर ले गए हम, उसका साइन चेंज हो गया। उसके बाद एलसीएम तुम्हें आता ही लेना। 13 4 जाएगा 52, माइनस किया 25 तो आया 27। अब इस 3 को मल्टीप्लाई में उधर ले गए, उधर ले जाने के बाद ये भी डिवाइड में चला गया और इतने 27 को कैंसिल आउट कर दिया। तो इस तरह से हमारा आंसर आया 9/13। नाउ इन फोर्थ पार्ट
So we have x upon 2 plus 2 upon 3y is equals to minus 1. In second equation we have x minus y upon 3 is equals to 3. तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 1/2 और सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 1. अब हम ऐसा करें कि फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इसमें भी x बच जाएगा. ओके, तो देखो जब हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से इंटू कर रहे हैं तो ऐसा होगा कि ईच टर्म विल बी मल्टीप्लाइड विद 2. जब भी आप किसी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी हर टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ता है. तो 2 जो है वो x/2 से भी होगा, इससे भी होगा और थर्ड टर्म से भी होगा. ठीक है, तो अब देखो ये तो हो गया x, ये हो गया 4/3y इक्वल्स टू -2. बच्चों ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन. ओके, एंड फोर्थ इक्वेशन है x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3. अब हम ये सेकंड इक्वेशन है. अब हम सेकंड में से थर्ड को या थर्ड में से सेकंड को माइनस कर सकते हैं. तो सेकंड इक्वेशन है बच्चों x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 3 और थर्ड है x प्लस 4/3y इक्वल्स टू -2. अब हम देख रहे हैं दोनों में x का साइन जो है वो पॉजिटिव है. इस कंडीशन में हमें दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होगा और जब हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज होंगे. x इज़ कैंसल्ड आउट. अब बच्चों फर्स्ट इक्वेशन में -1/3y है, सेकंड में -4/3y है. दोनों के साइन नेगेटिव होने की वजह से हम इनको ऐड करेंगे और -1/3 और -4/3 बन जाएगा -5/3 और 3 + 2 हो जाएगा बच्चों 5. अब y की वैल्यू निकालनी है तो -5/3 उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल होगा तो बच्चों y मिल जाएगा हमें -3. तो इस तरह से हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली. अब इस वैल्यू को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में रखें या थर्ड इक्वेशन रखें तो x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3. इसमें अगर हम y की वैल्यू -3 रख दें तो एक माइनस तो बाहर है, एक y भी माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल और ये प्लस का 1 उधर जाके हो जाएगा -1. तो x हो जाएगा बच्चों 2. तो x इज इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू -3. यही है बच्चों इसका सॉल्यूशन. तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन इज अ वर्ड प्रॉब्लम. फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड. तो कह रहा है एक पेयर फॉर्म करो. ठीक है, तो तुम्हें पता ही वर्ड प्रॉब्लम है. सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. इफ़ वी हैड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. पहला स्टेटमेंट, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड only 1 to the denominator. So what is the fraction? So it is clear that question is based on fraction और फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में हमें पता है कि हमें फ्रैक्शन को x/y कंसिडर करना है, यानी न्यूमरेटर 1 और न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y. सो लेट द फ्रैक्शन बी x/y. ठीक है. नाउ फर्स्ट कंडीशन इज इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, ऊपर तो 1 ऐड करो एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, नीचे 1 सब्ट्रैक्ट करो तो फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, यानी फ्रैक्शन जो है वो रिड्यूस होकर यानी कम होकर 1 बन जाता है, यानी फ्रैक्शन 1 हो जाएगा. अभी फ्रैक्शन क्या है x/y. तो कह रहा है x/y में वो चेंज कर दो वो चीज़ें जो वो बता रहा है कि 1 को ऐड कर दो और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो डिनोमिनेटर में से. तो ये जो फ्रैक्शन है अब ये कम हो गया है और कम होकर 1 बन गया है, यानी ये कह रहा है कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर देन फ्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू 1. ठीक है, अब ये हो गया है. नाउ वी मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं. y-1 उधर जाके 1 से इंटू हो गया. अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला रहे हैं तो 1 इंटू वाई 1 इंटू 1 x और y एक तरफ, y उधर गया तो उसके साइन चेंज, 1 उधर गया तो इसका भी साइन चेंज, तो ये माइनस का हो गया. तो x माइनस वाई और -1 हो गया बच्चों -2. इस तरह से ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. अब देखो सेकेंडली क्या कह रहा है वो. सेकेंड में वो कह रहा है कि
दिस फ्रैक्शन बिकम्स हाफ, पहले तो 1 बना था अब हाफ बन जाएगा अगर आप केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दो, इफ़ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर। ओके, तो चलो कर देते हैं, ये हमारी वेरिएबल है, वो कह रहा है केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दो, तो कर दो डिनोमिनेटर में 1 ऐड, तो कह रहा है फिर ये फ्रैक्शन 1 नहीं बनेगा, अब ये हाफ बन जाएगा, तो बन गया। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 को मल्टीप्लाई किया, इस y को उधर ले गए, तो बच्चों ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इक्वेशन फॉर्म करना, क्योंकि मेथड तो आ जाते हैं, इक्वेशन फॉर्म करना आना चाहिए। तो अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन बच्चों ये है और सेकंड है ये, ठीक है, ध्यान से देखो, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 और सेकंड इक्वेशन आई है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ध्यान से देखो, नाउ वी हैव दिस मेथड एलिमिनेशन। ओके, तो देखो एलिमिनेशन मेथड जो है उसमें हमें क्या करना पड़ता है कि दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम करना होता है, या तो x के या y के। यहाँ हम देख रहे हैं पहले से ही y का कोफिशिएंट सेम है, तो जब कोफिशिएंट सेम हो तो फिर ये देखना पड़ता है उसके साइन क्या है। अगर उसके साइन भी सेम है तो दोनों को माइनस करते हैं इक्वेशंस को, अगर उसके साइन अपोजिट है तो दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। नाउ इन बोथ द इक्वेशन वी कैन ऑब्जर्व दैट साइन एंड कोफिशिएंट्स आर सेम, तो जब सब कुछ सेम हो तो बच्चों इनको माइनस कर देना है, ठीक है। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे, और माइनस जब करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाली इक्वेशन के, तो ये माइनस वाई और प्लस वाई तो हो गया बच्चों कैंसिल। इधर x है और इधर -2x है, तो बड़ा है माइनस का इसलिए -x आएगा, और -2 -1 हो जाएगा -3, तो बच्चों x हो गया 3। अब x3 को रख दो आप फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड में, तो बाय फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, इसमें x की वैल्यू 3 रख दो, तो 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2। अब ये माइनस का y इधर रहेगा और प्लस का 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या बच्चों -5, माइनस हो गया कैंसिल आउट, तो y आ गया हमारा 5। तो हमारा x आया 3 और y आया 5। इसका मतलब जो हमारा फ्रैक्शन है जो x/y था वो हो गया 3/5, x3 और y5, तो 3/5 है। अब इसको चेक कर लो, उसने कहा था अगर हम दोनों में 1 ऐड करें तो 2 2 जा ये, तो फ्रैक्शन बिकम्स 2/3, यही कहा था क्या उसने, 1 ऐड कराया था क्या, हाँ सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई। उसने कहा था कि 1 ऐड करो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो देखो 3 + 1 किया तो बच्चों कितना आया 4, और 5 - 1 किया तो कितना है 4, और फ्रैक्शन क्या बन गया 1। यही कहा था ना उसने कि फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन 1 बन गया। अब उसने कहा था अगर आप डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दोगे, 3/5 आया, अगर ऊपर तो छोड़ दो नीचे 1 ऐड कर दो, तो ये 3/6 हो गया, एंड फ्रैक्शन क्या बन गया बच्चों हाफ। तो इस तरह से हमने वेरीफाई कर लिया और दोनों ही हमारी इक्वेशन सही हैं। इस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। Now this is a problem based on ages of 2 persons. So now here 5 years ago Noori was thrice of Sonu, and 10 years later Noori will be twice of Sonu, as old as Sonu. तो दो बंदे हैं नूरी और सोनू, तो इसलिए हम एक की एज x और सोनू की एज y मान लेंगे। ये कौन सी एजेस है, प्रेजेंट एज। ओके, अब से पहला काम कि जो भी दो बंदे हैं उनकी एजेस मान लो। तो हमने मान लिया नूरी की एज x है और सोनू की y, तो कह रहा 5 साल पहले, तो 5 साल पहले बच्चों पहले नूरी की एज निकालोगे। अगर आज किसी की एज x है तो 5 साल पहले उसकी एज क्या रही होगी, और सोनू की एज y है तो 5 साल पहले उसकी एज कितनी थी,
तो सबसे पहला काम होता है कि जितने साल पहले की वो बात कर रहा है उतने साल पहले के वेरिएबल फाइंड करो। अब रिलेशन में उन वेरिएबल्स को रख दो कि नूरी इज़ थ्राइज ऑफ सोनू, ये रिलेशन है कि नूरी इज़ थ्राइज ऑफ सोनूज एज। तो नूरी की एज 5 साल पहले की बात कर रहा है तो यहाँ रख देंगे, और सोनू की एज भी 5 साल पहले वाली तो यहाँ रख देंगे। अब ये इक्वेशन बना देंगे अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में। उसके लिए 3 को पहले y से इंटू करेंगे, फिर 3 को 5 से इंटू करेंगे। अब बच्चों में प्लस का 3y उधर जाएगा और माइनस का 5 उधर जाएगा, तो प्लस का 3y इधर आके माइनस हो जाएगा और माइनस का 5 उधर जाके प्लस 5 हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 3y इक्वल्स टू -10। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब कहता है कि 10 साल बाद, तो पहले 10 साल बाद की एज निकालते हैं। पहला काम है कि जितने साल बाद की बात कर रहा है तब के वेरिएबल फाइंड करो। तो 10 साल बाद नूरी की एज कितनी होगी ये हमें सोचना है। तो बच्चों नूरी की प्रेजेंट एज x है तो 10 साल बाद होगी x + 10, और सोनू की प्रेजेंट एज अगर y है तो 10 साल बाद उसकी एज होगी y + 10। तो पहला काम होता है कि जितने साल बाद की बात कर रहा है उस समय दोनों जो पर्सन हैं उनकी एजेस को हम फाइंड कर लें। ओके, तो अब हम देखेंगे कि रिलेशन क्या है। तो कह रहा 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस ऑफ सोनू। तो बहुत ही क्लियर है रिलेशन की नूरी की एज जो है वो सोनू की एज की ट्वाइस होगी। तो नूरी की एज यहाँ रख दो और सोनू की एज यहाँ रख दो। तो नूरी की एज थी x + 10 इज इक्वल्स 2 इंटू सोनू की एज है y + 10। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू वाई हो गया 2y और 2 10 जो हो गया बच्चों 20। ये 2y उधर गया तो x माइनस 2y और ये 10 उधर गया तो 20 माइनस 10, प्लस का 10 उधर जाके माइनस हो गया। तो बच्चों इक्वेशन बनी x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल्स टू -10, और सेकंड इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। तो बच्चों यहाँ पर अब हमें इस मेथड को अप्लाई करना है। तो सबसे पहला काम है चेक करना कि दोनों के कोफिशिएंट सेम है क्या किसी एक वेरिएबल के। तो हम देख रहे हैं x के कोफिशिएंट दोनों में सेम है। जब सेम है तो इसका मतलब किसी भी इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो फिर दूसरी चीज़ ये देखनी कि क्या दोनों ही कोफिशिएंट जो हैं उनके साइन भी सेम है। तो येस, यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव साइन है। पहले में भी x पॉजिटिव है, दूसरे में भी x पॉजिटिव है। अगर दोनों में साइन सेम है तो फिर हम दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस से प्लस हो जाएगा। तो प्लस एक्स में से माइनस एक्स कैंसिल होगा। अब -3 और +2 हो गया बच्चों -y, और -10 हो गया -20। तो बच्चों y हो गया अपना 20। जब y 20 आ गया तो इसको रख दो या तो फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, तो बाय फर्स्ट इक्वेशन x माइनस 3y इक्वल्स टू -10। अब हम y की वैल्यू यहाँ पर रख दें इसमें 20, तो बच्चों x आ गया 50। तो इसका मतलब नूरी 50 ईयर्स की है और सोनू 20 ईयर का है। अब इसको हम चेक कर सकते हैं कि नूरी जो है उसकी एज है 50 और सोनू की एज है कितनी है, सोनू की एज 20। तो कह रहा है कि 5 साल पहले नूरी की एज थी 45 और 5 साल पहले सोनू की एज थी 15। तो देखो 15, तो कह रहा है नूरी वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सोनू। तो देखो सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 45 आ गया। इसका मतलब नूरी जो है उसकी एज सोनू की थ्राइस थी। फिर कह रहा है 10 साल बाद, तो आज अगर नूरी की एज 50 है तो 10 साल बाद बच्चों उसकी एज होगी 60, और सोनू की एज अगर आज 20 है तो 10 साल बाद उसकी एज होगी 30। तो हम देख रहे हैं कि नूरी की एज जो है वो सोनू की एज की डबल है, और यही उसने कहा था कि 10 साल बाद उसकी एज ट्वाइस हो जाएगी। तो इस तरह से दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गए हैं।